स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, you are given with two concentric circles. Concentric circle means a circle inside another one and having the same center. ठीक है, दोनों सर्कल्स का क्या है, सेंटर सेम होता है. That means if this O is the center of the circle, this O point is the center of the circle. Okay, you are given with radius of the two circles. Okay, दोनों सर्कल्स का रेडियस दिया हुआ है. ठीक है. फॉर द फर्स्ट वन द रेडियस इज, इस वाले सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है. एंड फॉर द सेकेंड वन, जो छोटे वाला सर्कल है उसका 7 सेंटीमीटर रेडियस है. ठीक है. बिगर सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर सर्कल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट. इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. You have to find the area of shaded part. Find area of shaded part. You are given with theta also. This theta is also given, that is this angle, this one angle, this theta is given 45 degree. This is given 45 degree. ओके, चेक वन थिंग. हमारे पास ना इसमें दो सेक्टर्स हैं. वी आर हैविंग टू सेक्टर. वन इज सेक्टर ओ ए बी, दिस वन कंप्लीट सेक्टर, एंड वन इज सेक्टर ओ सी डी. सो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट, देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट. सो वी कैन डू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी. ओके, सो सेक्टर ओ ए बी माइनस ओ सी डी कर दो. सो यू नो द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. क्योंकि एक जगह पे हम कैपिटल आर ले रहे हैं क्योंकि वो बड़ा रेडियस है 14 वाला, और जो छोटे वाला रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. तो इसमें से देखो अभी पाई थीटा कॉमन ले लो. पाई थीटा अपॉन 360 ये कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. सो यू विल बी गेटिंग पाई इज 22/7 मल्टीप्लाई थीटा इज 45 अपॉन 360. देन आर स्क्वायर इट इज 14 स्क्वायर. सो 14 स्क्वायर minus 7 square. So you will write 22/7 multiply 45 1 ja 8 ja. So it is 1/8 multiply by a square minus b square. एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस. 14 + 7 21, 14 - 7 it's 7. Okay, so 7 to 7 cancel out, then 2 4 ja 8, 2 11 ja. So you are left with 11 into 21. Okay, 11 into 21, so 11 1 ja, 11 2 ja 22 plus 1 23. Okay, so it will be just a minute, it's not writing properly na. 231 upon 4 centimeter square. 4 centimeter square, this will be your answer. Just 231 upon 4 centimeter square. This will be your answer for the area of the shaded part. Okay, next देखो, we are given with a square. Okay, this is a square we are given with. Then the side of the square is given 14 centimeter and we are given with 4 circles. Okay, inside this square we are given with 4 circles. Then I will draw these circles here which are touching the boundary of the square. All are equal circles, these all are equal circles like this. They are touching
each other also and also. Okay, the side of the square is given 14 centimeter. You need to find the area of shaded part. ये वाला जो shaded part है ना, this pink one, you have to find this area. Okay, so try to calculate the area of shaded part. देखो रेडियस ऑफ सर्कल तुम लोग खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हो. इफ इट इज गिवन टोटल 14 सेंटीमीटर एंड इक्वल सर्कल्स आर गिवन, दैट मीन्स द डायमीटर ऑफ वन सर्कल विल बी हाउ मच? 7 सेंटीमीटर. देन रेडियस विल बी 7/2. ओके, सो यू ट्राई टू कैलकुलेट. You will be finding the area of shaded part by subtracting area of the circles. हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 4 सर्कल्स हैं तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल्स. सो इट विल बी 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 7/2, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. 7/2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, 7 to 7 कैंसिल आउट, 196 minus 154 and answer will be 42 centimeter square. This is your answer. If you are given with a circle, okay, this is a circle you are given, then inside this circle you are given with an equilateral triangle. You are given with an equilateral, huh? All sides of the triangle are equal. This is equilateral triangle A, B, C. ठीक है, you need to find the area of the shaded part. ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. And the radius of the circle. Radius of the circle is given 7 centimeter. Radius of the circle is 7 centimeter. You need to find the area of the shaded part. Shaded part का area find out करना है. Two things are possible. First is you will find area of circle, and out of area of circle you will subtract area of equilateral triangle. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को ट्राइंगल की साइड नहीं पता है. देन हाउ यू विल बी फाइंडिंग द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देन सेकंड थिंग यू कैन डू इज यू विल फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, दैट मीन्स एनी सेगमेंट यू विल फाइंड एंड एरिया ऑफ सेगमेंट यू विल मल्टीप्लाई बाय 3. तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, बट द थिंग इज टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल के सेंटर पे जाना है. ठीक है, and this radius is already given, it is 7 centimeter. So you will be doing what? Pi r square theta upon 360 minus half r square sin theta. But how much this theta will be? यहाँ पे ये थीटा चाहिए तुम लोगों को. ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था. द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट on circle. So if this angle is 60, that means we will be taking this one as 120. So now we can find area of segment. अब find out कर सकते हैं. So area of segment, we know the formula, that is pi r square theta upon 360 minus half r square sin theta. Huh? So just put all the values, that is pi 22/7 multiply r square 7 into 7 multiply theta 120 upon 360 minus half r square, it is 7 into 7, then multiply by sin theta. So sin theta is sin 120. You can take 7 into 7 common from both. हाँ, इसको common ले लो. So it will be 7 7 कॉमन आके 49 हो जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 22/7, देन मल्टीप्लाई 123 जा. सो इट विल बी 1/3 माइनस 7 7 इज ऑलरेडी कॉमन, 1/2 मल्टीप्लाई साइन 120. साइन 120 वी विल बी राइटिंग इट एज साइन 90. Okay, we will write sin 90 plus 30 and sin 90 plus 30, that means it will be cos 30.
ओके ये वाला cos 30 हो जाएगा एंड cos 30 इज व्हाट √3/2. सो यू विल पुट हियर sin 120 का वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बी √3/2. ठीक है, ये वाला हो जाएगा √3/2. देन you will write 49 22 7 3 जा 21 minus √3/4. ओके नाउ यू कैन सोल्व इट. हाँ तुम लोग इसको देखो, √3 की वैल्यू पुट कर देना 1.73. 22 को 21 से डिवाइड कर लो, 1.73 को 4 से डिवाइड एंड देन सबट्रैक्ट 49 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर. दैट्स इट. एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द आंसर. जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई योर आंसर विथ 3 ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे 3 सेगमेंट्स है ना. हाँ तो एरिया ऑफ 1 सेगमेंट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3. नेक्स्ट देखो, यू आर गिवन विद a right angle triangle. You are given with this question, this one. Then you are given with an, you know about this figure, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी थोड़ा सा ये क्लियरली बन नहीं रहा है. आई ट्राई टू मेक इट अगेन. If I'll join with this one and like this, okay, what it will be? क्या बना ये? It's a quadrant. It's a quadrant, and then a semicircle is drawn here. This one. Now, if the radius, okay, this is given 10 centimeter, you can use the value of pi as 3.14. पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर सकते हो तुम. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट. ये वाला शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. यू आर गिवन विद पाई 3.14. दिस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल दैट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ये. ठीक है, it is 10 centimeter, so you need to find the area of shaded part. देखो बेटा यही करना है पहले. हाँ पहले तुम लोग क्या करो, you find the area of quadrant. ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लो पहले. क्वाड्रेंट जो है तुम्हारा क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट. कल बताया था मैंने, इफ़ यू आर हैविंग अ सर्कल यू आर डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स. ओके देन 1 पार्ट विल बी व्हाट, इट विल बी क्वाड्रेंट. वो क्वाड्रेंट बन जाएगा. दैट मीन्स इफ़ आई एम टेकिंग 1 पार्ट आउट, मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट जो है कट कर लिया. ठीक है, सो चेक करो ये वाला पार्ट सेम बन रहा है जो हमारा ABC से ये ग्रीन इंक्लूड होके बन रहा है ना, तो इस तरह से बनता है. देन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. इट्स 1/4 पाई r स्क्वायर. So it will be 1/4 multiply pi is 3.14 and r square 10 into 10. So decimal remove करके 100 लगाओ, 0 0 cancel out. So 314 upon 4 centimeter square. This is the area of quadrant you will get. ठीक है. Now what is the area of this triangle ABC? So area of triangle ABC, area of triangle ABC, it will be half into base into height. Base is 10, height is also 10, so it is 2 5 ja 10 and 10 5 ja 50 centimeter square. Okay, so now what is the area of ग्रीन पार्ट? जो तुम्हारा ये ग्रीन पार्ट है इसका एरिया, या तुम लोग इसको सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट करके लिख सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कलर है तो मैं ग्रीन पार्ट लिख रहा हूँ. तुम लोग लिख सकते हो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट. अगर तुम इसको फर्स्ट ले रहे हो, ट्राइंगल को फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड और ये थर्ड पार्ट. सो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट ये आ जाएगा 314 अपॉन 4 माइनस 50. सो इट विल बी 314 माइनस 200. इट्स 114 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, ये जो ग्रीन वाला. नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ कंप्लीट सेमी सर्कल, जो ये AC डायमीटर है ना, पहले AC की लेंथ फाइंड आउट कर लो. So how we find AC? By using Pythagoras property. So by using Pythagoras property. पता नहीं क्या हो जाते हैं पेन लिखते लिखते.
पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, ए सी फाइंड आउट करेंगे। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो इट विल बी ए सी स्क्वायर विल बी ए बी इज 10 प्लस बी सी इज ऑल्सो 10। सो ए सी विल बी इक्वल टू 10√2 इतना आएगा, क्योंकि ए सी जो ए सी स्क्वायर जो आएगा वो 200 आएगा। दैट मीन्स ए सी विल बी 10√2 सेंटीमीटर। नाउ इफ ए सी इज 10√2 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना आ जाएगा, इट विल बी 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट, अब उसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट कर लो। सो देखो, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल बी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, इट इज 5√2 मल्टीप्लाई बाय 5√2 डिवाइडेड बाय 2। सो √2 इंटू √2 इट्स 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटाया, डेसिमल यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 5 जा 25, 4 जा 100, सो वी आर गेटिंग 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हाँ, सो दिस इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देन the area of the third part that we need to find, area of third part or this pink one, ये जो निकालेंगे area of semi circle that is 314/4 minus the area of the green part का हमारा area कितना आया था, 114/4, 114/4। so it will be 314 minus 114, 200/4, 4 5 जा 20, 0, so it is 50 centimeter square. This area will be 50 centimeter square. This will be your answer. One more question is there. You are given with a square. Okay, this is one square you are given with. Then it's a quadrant. Okay, oh sorry, एक minute. You are given with this one like this. Then one more time, it's some kind of design, ऐसा कुछ दिया हुआ है, this one. This square is having side 14 centimeter and you have to find the area of this middle part, that is the shaded one. You have to find the area of this one. इसका area find out करना है. If the side of the square is 14 centimeter, you have to find the area of shaded part. ठीक है, देखो जब हमने ये डायगोनल लिया BD, उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ वन सेगमेंट फाइंड आउट कर लो। सेगमेंट कौन से वाला, इसको फाइंड आउट कर लो। देन डबल दिस वन, यू विल गेट योर आंसर। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला यूज करो। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, इट्स एरिया ऑफ सेक्टर, यू कैन राइट, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। So what is the sector pi r square theta upon 360 minus half r square sin theta? So that means it will be r square common, then pi you can put 22/7 multiply theta, you can check, it's a square, so 90-degree angle will be there. So 90/360 minus half sin 90. Okay, so 94 जा। देन आर स्केयर, आर की वैल्यू पुट करेंगे 14, 14 इंटू 14 196, 22/7 4 जा 28 माइनस 1/2। ओके, दिस इज पाई आर स्केयर थीटा। हाँ, देन सो वी विल टेक
196 upon 22, LCM will be 28, huh? Then 2 14 ja, so minus 14. So we are getting it 196 multiply by 22 minus 14, it will be 8 upon 28. 4 2 ja 8, 4 7 ja 28, 7 1 ja, then 7 2 ja 14, 7 8 ja 56, 28 2 ja 56 centimeter square. This is the area of only this part. Then we will double this one. So area required जो हम लोगों को चाहिए वो आ जाएगा 56 multiply by 2. 2 6 12, 112 centimeter square. This will be your answer, 112 centimeter square. You are given with a equilateral triangle. Okay, this is equilateral triangle you are given. Then inside this triangle there is a circle which is touching its all parts, means all the sides of the triangle. तीनों sides को touch कर रहे हैं. This circle is touching all the three sides of the triangle. Then A, B, C. This is the triangle. Okay, so if the side is given, this side is given 14 centimeter. So you need to find the area of the shaded part. If the side of the triangle is 14 centimeter, you have to find the area of shaded part. Okay, this is your homework also. You have to do this question in homework. Next class I will be answering this one.